Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to wind up the lesson number 14, which is about the stories of Mullah Nasiruddin. In the previous lecture, we went through the various stories of Mullah Nasiruddin, and we found that how funny and humorous way of speaking and narration was there, and what a witty character Mullah Nasiruddin was. The first story was about the man on the tree and how he helped the man which unfortunately fell down, and how he tackled the situation. The second story was the guest of honor, and the third was the turban is mine. Now we are going to wind up the exercise of this lesson. Okay, here are some questions. Answer these questions in few words. What is common in two words, mullah and hoja? So in order to find out its meaning, here we are. In Turkish language, he is addressed as hoja. It means a title meaning teacher or scholar. And in Urdu language, we translate it as mullah. So hoja is a Turkish language title meaning teacher or scholar, whereas mullah is the translated version of this word. यानी कि होजा जो है वो तुर्की में कहते हैं और मुल्ला जो है वो उर्दू में उसी लफ्ज़ का जो है वो ट्रांसलेशन है. Number 2, why is Mullah Nasiruddin popular in Islamic world? इसका भी जवाब जो है वो इसी फर्स्ट पैराग्राफ के सेकंड पैराग्राफ के अंदर देख लें. यहाँ से शुरू कर लें. Mullah Nasiruddin was a witty man with a sense of humor. He was a good conversationist, as he knew how to talk to people in a simple way, in a simple, funny manner, without showing anger. He succeeds in life, बाकी skip करके, through wit, innocence, mischiefs, and pranks. यहाँ पर ये भी ये लाइन ऐड कर सकते हैं. He wrote as many as 350 stories. Now, question number 3. List the characteristics of Mullah Nasiruddin. Characteristics means औसाफ, खूबियाँ, वो इन्हीं इसके अंदर जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा है. अगर 2 क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो उसके अंदर से तीसरा भी आ सकता है. विटी मैन है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, फिर इसी तरह ह्यूमरसली जो है वो सिचुएशंस को इनोसेंस के साथ, मिस्चीफ और प्रैंक्स के साथ सिचुएशन को डील करते हैं. तो ये सारे के सारे जो हैं वो मुल्ला नसीरुद्दीन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आगे मूव करें जी. रीडिंग फॉर मीनिंग. आंसर दिस क्वेश्चन इन कॉमन कंप्लीट सेंटेंस. ये शॉर्ट हैं आंसर क्वेश्चन और ये आगे आपके लॉन्ग. डू यू थिंक नसीरुद्दीन फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू स्टोरी 1. अगर आपको स्टोरी 1 याद है तो उसमें क्या हुआ था? मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस बंदे के साथ रस्सी बांधी और बांध के उसको अपनी तरफ खींचा जो कि दरख्त के ऊपर था. तो वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और बेचारा जख्मी हो गया, बुरी तरह इंजर्ड हो गया. तो क्या वो अपनी अटेम्प्ट में फेल हुए? यस. मुल्ला नसीरुद्दीन कंप्लीटली फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट. ये स्टोरी हम सामने रख लेते हैं, आपको यहाँ से वर्ड बैंक मिल जाएगा. बिकॉज ही ट्राइड टू
rescued a person in a thoroughly wrong way, and that's why he was the man uh, fell down from the tree and hurt himself badly. अब जरा question number 2, B question number. Who are the important people in our society? Who are the important people in our society? Discuss with reference to story 2. So उस दौर में भी ये गेस्ट ऑफ ऑनर में यहाँ पर वो मुख्तलिफ पर्सन्स के नाम देता है कि तुम डिप्लोमेट हो, तुम मिनिस्टर हो, तो वही जो हमें वो वहाँ पे यहाँ पे रिपीट करेंगे. There are certain distinguished persons or people in our society who are very much honored and respected. For example, diplomats, ministers, and kings. Now, question number C. Why was Ainola annoyed by Nasiruddin's remark about the turban in story 3? Now, here is story number 3. Ainola तो बार बार annoyed होता है अपने दोस्त के रिमार्क के साथ, क्योंकि वो उसको बार बार ये लोगों को बताना ये चाह रहा है कि ये जो टर्बन उसने पहना हुआ है ये मेरा है. तो दूसरों को बार बार ये रियलाइज करवाने की वजह से नोला जो है वो एनॉयड हो जाता है. तो इसका आंसर इस तरह कर लेंगे, एनॉयड, इनियोला, आइनोला annoyed by the remarks of Mullah Nasiruddin because he time and again reminded about his turban and showed a clue or gesture to other people that the turban Ainola was wearing belonged to Nasiruddin. So this was the reason of his annoyance. So अब जहाँ पर टिक ट्रू फॉल्स ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आप खुद करेंगे. द बाईस्टैंडर्स वर ऑल वेरी हैप्पी. स्टोरी ये में बताएं कि वो खुश थे. नसीरुद्दीन इज नॉट द गेस्ट ऑफ ऑनर. Ainola was happy to get the turban from Nasiruddin. क्या उसके टर्बन लेके Ainola जो उनसे वो खुश था. आखिर तक स्टोरी में बताएं कि वो खुश रहा कि नहीं. Reading for ideas. Discuss your answers to these questions as a class or in group. तो इनके ग्रुप के एक्टिविटी जो है ये क्लास में भी होगी. After reading the stories, what is your assessment of Mullah Nasiruddin's character? मुल्ला नसीरुद्दीन का करेक्टर जो है वो क्या है, वो अभी हमने मैं आपको क्वेश्चन जो आंसर मैंने अभी करवाए उसमें भी इस बात का मैंने आपको बताया. लेकिन जब ग्रुप एक्टिविटी होगी उसमें भी बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करके इसका आंसर करेंगे. डू यू थिंक इट इज बेटर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स इन एन ईजी एंड ह्यूमरस वे? इफ यस, व्हाई? इस पे भी पूरी ग्रुप डिस्कशन होगी क्लास के अंदर और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. तो कुछ एक हम बना देंगे फेवर में और कुछ इसके अगेंस्ट में. वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, मिसचीफ, यहाँ पे उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है. एक्शन एंड नॉइज और इरिटेट, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं. चलाकी, इसको शरारत कहते हैं. प्रैंक, प्रैक्टिकल जोक को कहते हैं जी. बाय स्टैंडर, विटनेस, व्यूअर्स. मेड्स, इन द मिडल ऑफ समथिंग, दरमियान में. इंटरप्रेट,
bold, brave, courteous, बहादुर. Wanderings, aimless walk कहते हैं जिसको हम आवारा घूमना फिरना होता है. Mere, only, very simple. Bear, diplomat, a person who represents his or her country's government in a foreign country. उसको डिप्लोमेट कहते हैं जी. Suspiciously, doubtfully, fishy, problematic, questionable. Sarcasm, insult mixed with humor. उसको sarcasm कहते हैं, यानी कि ऐसी insult जिसके अंदर जो है वो humor भी छुपा हो. World cloud, make a world cloud on the stories of Mullah Nasiruddin. You may take help from 3 steps given under. ये steps कौन से हैं? Find 3 words that relate to character of traits of Mullah Nasiruddin. मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में 3 word. Characters of story, वो story के character कौन से हैं? Choose the words written in bold, और जो bold word हैं वो भी उसमें बताएं कि keywords जो हैं उस story के अंदर. Reading makes us wise. यहाँ पर एक डेंटिस्ट और क्रोकोडाइल की कहानी है. Yes. The crocodile with cunning smile sat in dentist's chair. एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो बड़ी मक्कार मुस्कुराहट के साथ डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ है. He said, right here and everywhere my teeth requires repair. मेरी दांत हर तरफ से इसको रिपेयर की जरूरत है. The dentist's face was turning white. ये white कब होता है भला? टॉम एंड जेरी के जब आप कार्टून देखते हैं तो टॉम कब white होता है भला? यस, जब वो खौफ ज़्यादा हो जाता है, जब उसके सामने अचानक वो डॉगी आ जाता है तो वो बिल्कुल वाइट हो जाता है. तो जो फेस जो है वो वाइट जब होता है जब इंसान जो है वो खौफ के साथ, फियर का एलिमेंट होता है. डॉक्टर्स फेस वाज टर्निंग वाइट, मतलब खौफ ज़्यादा था. He quivered, quaked and shock. quiver कांप उठा, अर्थक्वेक नहीं होता, यही वही क्वेक है. हिल गया और लड़खड़ा गया. शॉक. He muttered, वो बोला वो, I suppose I'm going to have to take a look. शायद मैं जरा इसकी जरा देखता हूँ. I want you, crocodile declared, to do the back ones first. मैं चाहता हूँ कि तुम पीछे वाले दांत जो है उनको पहले करो. The molars, वो तो दाढ़ें हैं, at the very back are easily the worst. वो सबसे ज्यादा खराब है. He opened wide his massive jaw. उसने अपना बड़ा सा jaw जो उसको खोला. It was a fearsome sight. बड़ा डरावना नजारा था. At least 300 pointed teeth, all sharp and shining white. अरे नुकीले दांत 300. The dentist kept himself well clear. उसने अपने आप को जरा महफूज रखते हुए He stood 2 yards away. 2 गज दूर खड़ा था. He chose the longest probe. Probe instrument को कहते हैं कोई भी आला जो मेडिकल में यूज होता है. He had to search out the decay ताकि वो खराबी को देख सके. I said to do the back ones first. The crocodile called out. पुकार उठा, चलाया. मैं कह रहा हूँ पीछे वाले दांतों को पहले साफ करो. You are much too far away. अभी तुम काफी दूर हो. Dear sir, to see what you're about. जिसको तुम तलाश कर रहे हो. To do the back ones properly, you have got to put your head deep down inside my great big mouth. तुम्हें अपने मेरे मुंह में जो है वो अपने सर को देना पड़ेगा देखने के लिए उन दांतों को. The grinning crocky said. Grinning कहते हैं कैका लगाते हुए, मुस्कुराते हुए, ऐसी मुस्कुराहट के बंदे के दांत जो है वो नजर आ जाए. The poor old dentist wrung his hand. Wrung? जी जनाब. उसने अपने हाथों को wing rang बेटा. Weeping in despair, मायूसी के साथ रो रहा था. He cried, no, I see them all exactly well from here. मैं यहीं से उसको देख रहा हूँ. Just then, in burst a lady. जल्दी से एक खातून जो है वो अंदर दाखिल हुई. In her hands a golden chair. और उसके हाथ में एक golden chain थी. She cried, oh Croc, you naughty boy, you're playing tricks again. दोबारा जो है वो ट्रिक्स खेल रहे हो लोगों से. Watch out,
The dentist shrieked and started climbing up the wall. उसने दोबारा चलाना शुरू कर दिया और shriek कहते हैं चीख मारना. He's after me. He's after you. He's going to eat us all. Don't be tweet, the lady said and flashed a gorgeous smile. Tweet कहते हैं मजाक करना. He is harmless. He is my little bat, my lovely crocodile. So, task 1. What makes you feel that it's a humorous narration? इतना पता चलता है कि humorous है, funny. Discuss the situation of the narration. Is it real or unreal? Give reasons. क्या ये story real है या unreal है? उसकी reasons दें. याद रखें कोई भी fiction जो है वो unreal होती है. Stories, greedy dog, hungry fox, clever crow, ये crocodile, ये सारी की सारी fiction है. जस्ट इसमें राइटर अपना मैसेज देता है, नहीं तो कौन सा क्रोकोडाइल डॉक्टर से बातें करता है. Idiom is a group of word in a fixed order that has a particular meaning. यानी कि अल्फाज का ऐसा ग्रुप, उसका एक मखसूस उसका मीनिंग होता है, डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, और उसका जो ऊपर वर्ड्स के मुताबिक उसका मतलब नहीं होता. For example, as they left, Ainola once again expressed his annoyance, claimed, "Why did you go to such lengths?" Meaning, try very hard to achieve or say something. क्यों मतलब बड़ी मुश्किल से कोई बात कहने की कोशिश करना या अचीव करने की कोशिश करना. अब कुछ वर्ड्स हैं. Go to any lengths. He'll go to any lengths to get what he wants. तो किसी भी बड़ी पूरी कोशिश करेगा कि जो उसको चाहिए. Go to great lengths means some people go to great lengths to decorate their homes. बहुत आगे तक चले जाते हैं. यहाँ पे कुछ मीनिंग है, कुछ हमारे पास इडियम्स है, उनके मीनिंग में आपको बता देता हूँ. कुछ सेंटेंसेस आप खुद बना लीजिएगा. Go back to square one. Square one का मतलब होता है go back to square one, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना किसी भी चीज़ के. Go on record, कोई भी अपना बयान जो है वो टेक्निकली कोई भी अपना व्यू पॉइंट जो है वो देना चाहता है पब्लिकली, उसको go on record कहते हैं. Get out of your mind, इमोशनलेस हो जाना, irrational हो जाना. Get over the top, ये गेट ओवर की सेंस पे भी आता है, किसी चीज़ पे कब्जा करना, गालिब आ जाना. गो वीक एट नीज, इसका मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट है. नर्वस हो जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाना किसी जगह. सो प्रोनाउन के बारे में हमने पूरा आपको लेक्चर एक रिकॉर्ड करवाया हुआ है. लेकिन चलें दोबारा याद दहानी हो जाएगी, दोबारा उसको ज़रा हम ट्रेस आउट कर लेते हैं. A pronoun is a word that takes the place of a noun. यानी कि जो लफ्ज़ नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं. जो हमने आपको पढ़ाया था वो ज़रा थोड़ा लेंथी था, इसको ज़रा हम जल्दी वाइंड अप करते हैं. अली इज़ अ पोस्टमैन, अली कैरीज अ ब्लू बैग. बारह रिपीट करने की जगह अली की जगह हम क्या करते हैं, दोबारा उसकी जगह ही का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाता है. सब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेस नाउन दैट आर द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट की जगह पर आता है उसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं. क्लॉज जनरली यूज बिफोर द वर्ब, ज़्यादातर वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है. आई एम 12 years old, वर्ब यहाँ पे एम है तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया. यू सीम अपसेट, यू सीम यहाँ पे वर्ब हो गया, तो यहाँ पे यू जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन. इसी तरह आपने यहाँ से अजमत इज़ एंग्री एंड ही वांट्स बिलाल टू अपोलोजाइज. यहाँ पे अजमत जो है ये तो नाउन है ना, आपने प्रोनाउन लगाना है, अंडरलाइन करना है इन तीनों में से. वो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन. आगे आ गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. जिस तरह ऑब्जेक्टिव केस मैंने बताया था, नॉमिनेटिव केस. ऊपर वाला जो है ये नॉमिनेटिव केस है और नीचे वाला जो है वो
क्या है? एक्यूजेटिव केस, जिसको ऑब्जेक्टिव केस भी हम कहते हैं। गिव द बुक टू मी, मी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट केस। द टीचर वांट्स टू टॉक टू यू, अब टीचर सब्जेक्ट हो गया और यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जमील इज हर्ट बिकॉज बीना पुश्ड हर, बीना यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट हो गई और हर जो है वो क्या हो गई? जमीला की जगह पर लफ्ज़ आया, ये हमारा ऑब्जेक्ट केस हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। देन पोजेसिव प्रोनाउन, दैट बैग इज माइन, ये माइन, ये योर्स इज नॉट ब्लू, योर्स हो गया। दैट बैग लुक्स लाइक हिज, हिज पोजेसिव प्रोनाउन, जिससे पोजेशन शो करते हैं, मलकियत शो करते हैं। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ। आई टोल्ड माई सेल्फ टू काम डाउन, यहाँ पर ये माई सेल्फ। यू कट योर सेल्फ, ये जो सेल्फ फॉर्म वाले होते हैं ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गए। इसी तरह टास्क, फाइंड examples of pronoun types discussed above from the unit and put them in the table below. Also mention the page number for keeping record. अच्छा जी, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, सिर्फ 4 ही हमने जो आपको करवाए थे वो उसमें, इससे आगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी उसमें शामिल था, उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, वो काफ़ी कुछ हमने पढ़ा था। ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज है कि जो सब्जेक्ट के तौर पर आता है लफ्ज़ ही, शीट, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट जो हैं वो हिम, हर, अस वगैरह जो हैं। इसी तरह योर्स, माइन वगैरह लफ्ज़ जो होते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर, सेल्फ फॉर्म वाले जो होते हैं, तो पिछले लेसन में से आपने निकाल के फाइंड आउट करना है और साथ साथ लफ्ज़ लिखना है, साथ साथ छोटे छोटे करके ब्रैकेट में पेज नंबर भी लिखना है, यूनिट नंबर, पेज नंबर। Now, direct and indirect, declarative or imperative. Direct, declarative क्या statements होते हैं? These sentences are simple statements that rely information. They are the most common type of sentences in English language for fact or opinion. Direct speech or indirect speech आ गया. The message to speaker is conveyed or reported in his own actual words without any change. उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जिस तरह अहादीस वगैरह हम कहते हैं, कायद ने ये फरमाया, इकबाल ने ये कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है वो सारा डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड और रिपोर्टेड इन आवर ओन वर्ड्स, वो अल्फाज हमारे अल्फाज में कन्वे किए जाते हैं हमारे मुताबिक, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। रूल क्या है जी? देयर आर सर्टन रूल्स, ये क्लास में भी इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा दोबारा। There are certain rules which we need to follow while constructing a sentence in direct speech or indirect speech. The words of the speech are always enclosed within inverted commas, quotation mark. जो statement जो होती है actual, जिस तरह ये है, he said, ये वाला, ये जो part है, sorry, they take exercise every day, ये जो inverted commas के साथ, इसको हम कहते हैं जी रिपोर्टेड स्पीच। और ये ही सेड जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टेड वर्ब। इनडायरेक्ट क्या है? ही सेड डैट, इसमें चेंज करने के लिए यहाँ पे डैट आ जाएगा। दे टुक एक्सरसाइज एवरी डे, क्योंकि ये पास था उसके मुताबिक फर्स्ट फॉर्म जो है वो भी पास में कन्वर्ट होगी। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन परफेक्ट और फ्यूचर टेंस, द टेंसेज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है, ये टेंस की तब्दीली उस वक्त होगी जब उससे पहले रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो प्रेजेंट पास्ट में है, और अगर यही फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है तो फिर आगे वाले जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। जिस तरह ही विल से आई एम अनवेल मीन्स ही विल से ही इज अनवेल। आई जो है उसका इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा ही के मुताबिक, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है प्रोनाउन, तो ये आई फर्स्ट पर्सन है। तो जब आप इनडायरेक्ट में तो इसको भी, आई को भी थर्ड पर्सन के मुताबिक जो है वो आप चेंज कर देते हैं। द टेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच इज नॉट चेंज इफ द वर्ड्स विद इन द कोटेशन मार्क टॉक ऑफ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ,
जब पास्ट में भी चाहे रिपोर्टिंग स्पीच हो तो रिपोर्टेड जो वर्ब है वो उसकी चेंज नहीं होता टेंस, जो कि यूनिवर्सल स्पीच का रेफरेंस हो, जिसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ हो या रिचुअल को एक्शन के बारे में। वी कांट लिव विदाउट वाटर, ये दो ना कि क्या हो गया, हैबिचुअल सिचुएशन हो गई। दे सेड दैट दे कांट लिव विदाउट वाटर। और we use punctuation mark, comma, full stop, exclamation mark, question mark, etc. at the end of quotation, quoting the speaker. It is and it is included within the inverted commas and is not placed out of it. यानी कि वो जो इन्वर्टेड कॉमा जो भी स्टार्ट वाला होता है, उसके जो उसने स्टेटमेंट कही होती है उसके फ़ौरन बाद जो है वो हम उसे लगा देते हैं। जी सबसे पहले क्या करना है जी, few points to remember. For direct and indirect speech we need to focus on following points. क्या है पॉइंट जी? चेंज इन मॉडल वर्ब फॉर्म, मॉडल वर्ब जिस तरह कैन, कुड, मे, माइट, उनकी फॉर्म। चेंज इन द टेंसेस, टेंसेस में चेंज होगी। चेंज इन टाइम एंड प्लेस, हियर जो है वो देर में चले जाएगा, यस्टरडे लास्ट डे में चले जाएगा। ये पूरे एक टेबल है जो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन जो उनका वो चेंज होता है जिसका मैंने बताया थर्ड पर्सन के मुताबिक, अगर ही है तो वो आई भी जो है वो थर्ड पर्सन के मुताबिक ही बन गया। चेंज इन पंक्चुएशन और इनडायरेक्ट स्पीच, वो जो कॉमास हैं वो हट के जो हैं वो उसकी जगह पर डैट लग जाता है, एंड वाले कॉमास भी हट जाते हैं, वहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता है। और इसी तरह क्वेश्चन मार्क भी अगर उसके एंड पे होता है तो वो हट के इफ़ वगैरह जो है वो स्टार्ट पे लगा देते हैं तो वो भी हट जाते हैं। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क या पंक्चुएशन मार्क, इसके अंदर जो तब्दीली आती है। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कमांड की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है या सजेशन की जाती है। An imperative sentence is one which expresses in command or request or advice or suggestion in order to change imperative। यानी कि जिसमें किसी को कहा करने का कहा जाता है, उसके लिए रिक्वेस्ट की जाती है। उसमें ये उसकी मिसालें हमारे पास हैं। आई सेड टू द टीचर प्लीज़ एक्सप्लेन, तो जहाँ पर आपने रिक्वेस्ट की जाएगी तो वहाँ पर वो टोल्ड की जगह पर रिक्वेस्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा और डैट की जगह यहाँ पे टू इस्तेमाल। आई सेड टू द टीचर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वंस अगेन। आगे आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन वंस अगेन। आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, हाँ ये आ जाए जहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है, तो अगर तो वो उसके मुताबिक हम चलेंगे। अगर तारीफ़ की गई है, दुखी सेंटेंस है, तो हम उसके मुताबिक, या प्रेस की गई है या जो उसके मुताबिक हम कहते हैं एक्सक्लेम्ड या प्रेड। माय डैड said to me, bravo, you have made me proud. My dad applauded me saying that I had made him proud. She said, God save my son. दुआ है ना जी। She prayed that God might save her son. ये आगे प्रैक्टिस आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये देखें ना जी, हमारे पास सबसे ये दुखी आ गया ना लफ्ज़, लॉस, व्हाट अ फूल आई हैव बीन। इसका मैं आपको ज़रा कर दूं, ये इम्पेरेटिव में भी है और सारा मिली जुली है। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड बीन a fool. He exclaimed with sorrow that he had been a fool. She said to her father, please lend me your pencil. Sorry, he said to her friend, please lend me your pencil. अब यहाँ पे प्लीज है ना, तो ही शी रिक्वेस्टेड टू हर फ्रेंड टू lend her his pencil, her pencil। बाकी जो है वो आप इसी तरह एक्सरसाइज करें। इंसर्ट अ कोटेशन मार्क and other appropriate punctuation। ये ज़रा दिया, the servant says whenever is ready, तो यहाँ पे कॉमा आ गया। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन वो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज
दो कोमे ऊपर लग जाते हैं, जहाँ पे भी दो कोमे और यहाँ पे फुल स्टॉप। स्टोरी एनालिसिस करने का तरीका जी हमने इसमें देखा है, स्टोरीज आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बेसिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। इट हेल्प्स देम मेक अ बेटर सेंस ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के सही समझ आती है इन अ फन एंड इंटरेस्टिंग वे, मज़ाही अंदाज में और दिलचस्प अंदाज में। स्टोरीज टीच अबाउट ह्यूमन वैल्यूज, बिहेवियर, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स। However, it is also important to see the similarities and differences in the stories. मुख्तलिफ स्टोरीज़ जो हैं वो मतलब पहली स्टोरी उन्होंने बताई है, दूसरी तीसरी स्टोरी का आपने बताना है। मिसाल के तौर पर पहली स्टोरी का टाइटल था द मैन ऑन द ट्री, नसीरुद्दीन था मैन ऑफ द डे, एक बंदा ऊपर था, बाय स्टैंडर को ऑब्जर्वर थे, एक और आदमी आया। फिर क्या सिचुएशन थी, बंदा जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ा, नीचे गिर गया और नीचे नहीं उतरा, नसीरुद्दीन ने किस तरह उसको रेस्क्यू किया। टोन क्या है जी, ह्यूमरस है, फेलियर है, सैड है, अनहैप्पी है। इसी तरह आपने तीनों स्टोरीज का जो है वो अब यहाँ पे एनालिसिस करना है। और स्टोरी राइटिंग के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जी। सबसे पहले आप आइडिया जो है वो जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद आप उसके स्केच बनाते हैं बेसिक्स के, कि उसमें करैक्टर कौन कौन से होगा, सिचुएशन क्या होगी, प्रॉब्लम क्या होगा, फिर उसको डेवलप कैसे करेंगे, फिर डिटेल में क्या करेंगे, करैक्टर एंड कन्फ्लिक्ट, कि किस तरह शी सेड दैट शी हैड नेवर मेट सच पीपल बिफोर। डिटेल जो हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। करैक्टर जो है फर्स्ट बिल्ड, जो मेन करैक्टर सबसे पहले हीरो जो है हीरोइन, उनको करैक्टर वो डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे करैक्टर्स, उसके फ्रेंड और उसके दुश्मन, फिर विलन, फिर एलाइज, असिस्टेंट असिस्ट द हीरो, मेंटर्स, टीचर्स कौन से हैं, गाइड कौन से करने वाले, जोकर, ह्यूमर्स, फिर सिचुएशन जो सी है वो किस तरह की होगी। फिर स्टेप 4 क्या, प्लानिंग द सीन, सिचुएशन क्या होगी, कहाँ पर जो है वो स्टोरी जो सी है वो प्लॉट आउट की जाएगी। ये देखिए हमारे पास आ गया बिगिनिंग, मिडल, एंड। स्टेप 5, यस यू राइट इट डाउन। रीटेलिंग द स्टोरी, स्टेप्स टू प्रैक्टिस जी, करेक्टर करें, सेटिंग, सिचुएशन, सेटिंग से मुराद है कहाँ पर वो होगी, प्रॉब्लम, इवेंट, सोल्यूशन किस तरह होगा। देन आर्ट ऑफ शेकिंग जोक्स, मेकिंग पीपल लाफ इन अ फाइन आर्ट। ये कुछ जोक्स हैं जी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर लेसन नंबर, यूनिट नंबर 4। होपफुली यू एंजॉयड। प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। ख़ास तौर पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक एक एक्सरसाइज जो है वो क्लास के अंदर जो है वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो स्पेशल बुक है उसमें से भी करवाई जाएगी, ताकि मैट्रिक तक जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तब तक के लिए अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेसन है उसमें हम यूनिट नंबर 5 जो है नेक्स्ट लेक्चर में वो इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।